وہ مجھے پچھلے 2 سے 3 مہینے سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اس سے پہلے میری ایک دوست ثنا اسی ریجیکشن کی وجہ سے ماری جا چکی ہے. ٹھیک ہے, میں ثنا نہیں بننا چاہتی, میں ان لڑکیوں میں نہیں شامل ہونا چاہتی. آئی ایم دا بریڈ ارنر آف مائی فیملی, اور میں ہی ہوں بڑی اپنے گھر کی. اتنے اچھے دوست کہاں سے ملتے ہیں. میرا موڈ آف تھا اینڈ ہی برنگ روزز فار می. حسن ہے وہ میرا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سامیہ حجاب کیس, اس کیس میں سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے آ گئی ہے. پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ سلسلے میں ایک ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل کیسے ہو رہی ہے, ڈیل میں کیا طے کیا جا رہا ہے, ڈیل کے بعد کیا ہوگا, ڈیل کون کروا رہا ہے, اس حوالے سے بہت اہم معلومات سامنے آ رہی تھیں. اور میں جو یہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے بیٹھ کر رہا ہوں, یہ تمام ریکارڈنگ کر چکا تھا کہ اس کیس میں اب تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خبر بن کیا رہی ہے اور پاسبل کیا ہے. یہ جو کردار ہے حسن زاہد کا, یہ کب تک سلاخوں کے پیچھے سے باہر آ سکتا ہے, ہم اس چیز کو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہوئے گیج کرنے جا رہے تھے. یعنی یہ خبر دیکھیے آپ, یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. خبر کے مطابق حسن زاہد کو دوسرے مقدمے میں بھی جوڈیشل کر دیا گیا. اب جوڈیشل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جوڈیشل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے, پولیس عدالت میں پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ جو الزام ہے, اس الزام پہ اس سے تفتیش کرنی ہے, مسروقہ مال برآمد کرنا ہے, کیس پراپرٹی برآمد کرنی ہے, کچھ معلومات چاہیے ساتھیوں وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں جو اس سے ریکور کرنی ہیں وہ ریکور کروانی ہیں. تو ہمیں اس سے تفتیش کے لیے, یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے لیے مہلت دیجیے, جس کا مطلب ہے ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیجیے. عام طور پہ پولیس عدالت سے ریمانڈ مانگتی ہے, فرض کیجیے 7 دن کا, عدالت 5 دن کا, 3 دن کا ریمانڈ دے دیا کرتی ہے. حسن زاہد دوسرے کیس میں بھی جوڈیشل ہو گیا. اگر عدالت ریمانڈ نہ دے, جسمانی ریمانڈ نہ دے, تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے جو پولیس کی گزارشات ہیں ان کو مسترد کیا اور کہا اب آپ تفتیش وغیرہ چھوڑیں, ہم اس بندے کو جیل بھیج رہے ہیں. یہ اس کیس میں ایک اچھی خبر ہوتی ہے. عام طور پر جب کسی ملزم کو جیل بھیج دیا جاتا ہے کہ اب اس کے وکلا عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں کہ جناب اب ہم دوبارہ عدالت آ گئے ہیں, اس کی ضمانت کر دیجئے, اور ضمانت ہو بھی جایا کرتی ہے. تو حسن زاہد کے کیس میں اس خبر سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ دوسرے مقدمے میں بھی جوڈیشل کر دیا گیا. لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سامیہ حجاب نے حسن زاہد کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہے فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے. یعنی کچھ نہیں چاہیے, جاؤ بابا تمہیں معاف کیا. یہ خبر کے مطابق سامیہ حجاب نے کر دیا ہے. مگر ہوا کیا ہے؟ پبلک ٹی وی کے بڑے زبردست رپورٹر, نوجوان رپورٹر کورٹ کے عثمان مغل اور ہمارے دوست ہیں اسرار راجپوت اور ان کے ساتھ عثمان مغل, ان لوگوں نے خبر بریک کی اور بتایا کہ اس کیس میں ڈیل ہوئی. یہ جو آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے فی سبیل اللہ معاف کر دیا, اس سے پہلے یہ بھانڈا پھوٹ چکا تھا کہ اس کیس میں ڈیل ہوئی اور سامیہ حجاب نے ڈیل پر رضامندی ظاہر کی. دلچسپ یہ ہے کہ سامیہ حجاب نے ڈیل کے لیے تمام تر اتھارٹی کس کو دی کہ آپ یہ تمام معاملات دیکھ لیجئے. ان کا نام ہے ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ شالیمار محمد اسحاق. ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ شالیمار محمد اسحاق جو ہیں, یہی حسن زاہد کو عدالت لاتے لے جاتے ہیں, یہی تفتیش کر رہے ہیں, یہی تمام معاملات دیکھ رہے ہیں. سامیہ حجاب نے جب رضامندی ظاہر کی جو بھی ڈیل ہوئی اس پر, تو سامیہ حجاب نے یہ اختیار دیا محمد اسحاق کو کہ آپ تمام معاملات دیکھ لیجئے. اور اس میں سامیہ حجاب نے اپنے ایک ڈر کے تحت ایک ڈیمانڈ رکھی کہ حسن زاہد کے موبائل فون سے اس کی جو مبینہ قابل اعتراض ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ ہوں گی, مکمل طور پر ڈیلیٹ ہوں گی. وہ اس کے موبائل فون میں, اس ڈیوائس میں موجود ہیں, کلاؤڈ پر موجود ہیں, وہاں سے شیئر ہو کے کسی اور ڈیوائس میں گئی ہیں. یہ تمام چیزیں چیک کی جائیں گی اور میک شور کیا جائے گا کہ یہ تمام چیزیں ہر جگہ سے ڈیلیٹڈ ہوں. اب ایڈیشنل ایس ایچ او کو تمام اختیار دینے کے بعد سامیہ حجاب نے یہ کہا کہ آپ گارنٹر بنیں گے, پولیس درمیان میں گارنٹر بنے گی. اور صرف سامیہ حجاب کی طرف سے نہیں,
दोनों जानिब से पुलिस गारंटर बनेगी। अब दूसरी जानिब से क्या डिमांड है, यानी कि हसन जाहिद की जानिब से पता ये चल रहा है कि सामिया हिजाब ने कहा मुझे डर है कि बाहर आके मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएगा, इसके पास अगर कुछ मवाद है तो उसे पब्लिक कर देगा, किसी को दे देगा, बाद में कहीं आ रहा होगा सामने, तो इसलिए इस चीज से मुझे बचाया जाए, मुझे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए किसी हरासमेंट के मुमकिना इक़दाम से भी, और मुझे मेरी ज़ात को जिस्मानी जो नुकसान पहुंचने का एहतिमाल है उससे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये पुलिस से गारंटी मांगी सामिया हिजाब ने। हसन जाहिद ने क्या गारंटी मांगी है? हसन जाहिद ने कहा कि मोहतरमा बहुत बोल रही हैं मेरे बारे में, मेरी साख को नुकसान पहुंचा रही हैं, मेरी फैमिली के बारे में बहुत बात कर रही हैं, तो ये चुप होंगी, ये अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, ना ही हसन जाहिद कोई बात करेंगे। फिर यह भी तय हुआ कि सामिया हिजाब अपने मौजूदा एड्रेस से मूव करेंगी मुबैना तौर पर। इसका मतलब क्या है? शहर में ही कहीं और मूव कर जाएंगी, शहर से बाहर मूव कर जाएंगी, मुल्क से बाहर मूव कर जाएंगी, जो कुछ डील में तय हुआ है उसको तय पा जाने के बाद मूव कर जाएंगी। अब इसमें पता ये चल रहा है कि एक बासर शख्सियत सूबे बलूचिस्तान की, उस बासर शख्सियत ने मुबैना तौर पर पुलिस के 4 बड़ों से राब्ता किया और उनसे कहा कि इस मामले को सेटल करवाया जाए। पुलिस के बड़ों ने जो मामलात देखने वाले ऑफिसर्स थे, जैसे कि ये मोहम्मद इसाक या इनकी टीम में शामिल कोई, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले की सोशल मीडिया पर बहुत हाइप हो गई है, इस मामले को ज़रा सा दब जाने दीजिए, डस्ट सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद इस मामले को देखते हैं कि कैसे बिल्कुल मंजर से गायब करना है। अब इस सिलसिले में नजर आ रहा था कि सामिया को कदम उठाना है, क्योंकि दोनों मुकदमात उनमें मुद्दई है सामिया हिजाब, तो सामिया हिजाब वो कदम उठाएगी और मुकदमे वापस लेगी। वो हमारे सामने आ चुका कि उसने माफ़ कर दिया है। मुमकिन है कि आज ही हो जाए हसन जाहिद का सलाखों से बाहर आना, या कल हो जाए, या ये मंडे के रोज़ हो पाए, क्योंकि वंस ये तमाम चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद एक अदालत की जानिब से जारी कागज़ होता है, वो कागज़ जेल हुक्काम तक पहुंचता है और जेल हुक्काम उस कागज़ को अपनी तहवील में लेने के बाद, जांचने के बाद जाने देते हैं किसी को। तो ये मामला तब ख़त्म होगा, और जाहिर है कि उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो फिर कोशिश की जाएगी कि ये हर तरफ से मामला ख़त्म हो जाए, दब जाए, इस पर मज़ीद डिस्कशन ना हो, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। सामिया हिजाब साहिबा इस सिलसिले में कोई भी मौक़िफ़ देना चाहें, जो मैंने तमाम मालूमात आपको दी हैं, इसमें कुछ पुलिस के दोस्तों से हासिल करदा मालूमात हैं, कुछ मालूमात कुछ रिसर्च के नतीजे में हैं, कुछ जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मिलने वाली मालूमात हैं। अब सामिया हिजाब साहिबा से मैंने कई बार राब्ता किया और उनसे राब्ता नहीं हुआ। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, किसी चीज़ की तरदीद करना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनसे ये मौक़िफ़ लेने के बाद आपके सामने रख सकते। उनसे राब्ता करने की कई बार कोशिश की गई, वो कोशिश कामयाब हो सकती थी, नहीं हुई तो जाहिर है कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ और रखूं बतौर कंक्लूजन इस स्टोरी के। इस स्टोरी में कौन कितना गलत, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, दोबारा बताऊं आपको। इस स्टोरी में पूरा पाकिस्तान भाई बन गया, जो हमारे आमतौर पे होता है, सड़क पे भी कुछ हो तो जितने मौजूद लोग होते हैं वो भाई बन जाते हैं और तेरी ये शुरू हो जाता है। यहां इस केस में भी ये हुआ कि एक लड़की आई, उस लड़की ने बताया कि मेरी दोस्त सना यूसुफ के साथ जो हुआ था वो मेरे साथ हो सकता है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये शख्स, मुखातिब करने का अंदाज क्या था, ये शख्स से ऐसा लग रहा था कि बराए नाम जान पहचान है, इसको नहीं जानती सामिया हिजाब, जिसका नाम बताया, उसकी वीडियो डाली, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी पब्लिक कर दिया और बताया ये शख्स। फिर पता चला कि नहीं, ये शख्स नहीं, इसका कुछ ताल्लुक़ है, और ये भी सामिया हिजाब ने नहीं बताया, सोशल मीडिया ने बताना शुरू किया। तो सोशल मीडिया पहले मोहम्मद बिन कासिम बनकर सामिया हिजाब के साथ खड़ा हो गया। सामिया हिजाब गलत थी, सोशल मीडिया ने ही बताना शुरू किया कि आपका इनसे ताल्लुक़ है, आप इनके साथ नज़र आई हैं, वीडियोज़ में नज़र आई हैं, ये ताल्लुक़ प्लस है, ये भी तमाम चीज़ों से पता चल रहा है। फिर ये आपके मंगेतर भी निकले, ये भी पता चल रहा है, और मंगेतर भी ऐसे कि आप लोगों का आपस में जो ताल्लुक़ था वो दोनों घरानों तक मालूम और इस्टेब्लिश था, आपकी उनकी वालदा से बात वगैरह भी होती थी। ये तमाम चीज़ें सामने आ गई। तो ये सोशल मीडिया ने, जिसका एक हिस्सा बड़ा गलत था,
उसी ने पोस्टमार्टम करके मजीद सामने रख दिया। सामिया हिजाब गलत, सोशल मीडिया गलत कि वो पहली बार में हसन जाहिद को नहीं छोड़ेंगे आस्तीनी चढ़ाकर आ गया था, तो फौरी तौर पर वहां से भी चीजें पता चली। फिर हसन जाहिद गलत। हसन जाहिद ने क्या किया? हसन जाहिद ने जो वीडियो में नजर आया कि एक बंदा एक लड़की के घर पहुंच गया है, जो तोहफा दिया वो वापस लेने पहुंचा है, जो पैसे दिए वो वापस लेने पहुंचा है। अदालत को भी बताया था कि ट्रांजैक्शन का सबूत वगैरह क्या कुछ मौजूद है, तो वो लेने वापस पहुंचा है। लड़की से आपका एक ताल्लुक था, मंगनी थी, मंगेतर थे, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। जो पैसे आपने दिए थे वो किसी ठेके के पैसे तो नहीं थे कि अगर काम नहीं होगा तो पैसे वापस करने होंगे। वो पैसे थे जो आपने उस ताल्लुक में दिए थे, एक लड़की को तोहफतन दिए थे जो आपकी मंगेतर थी। तो ये भी गलत कि वो फोन भी वापस करो, पैसे भी वापस करो, तोहफा था आपने दे दिया, अब वापस लेना और उसको वापस लेने के लिए मैन हैंडल करना, पीछे पड़ना, तशद्दुद करना, उठा के ले जाना, बहुत छोटी हरकत है। हसन जाहिद गलत। तो सामिया हिजाब गलत, सोशल मीडिया गलत, हसन जाहिद गलत, मीडिया में बहुत कुछ गलत रिपोर्ट हुआ, गलत। फिर उसके बाद मैं जो बात करता हूं बार बार, एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, जो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन और सबसे मजबूत ढाल होता है किसी शख्स की। वो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो यहां गलत। सामिया हिजाब के केस में शी हैज टोल्ड समथिंग अबाउट हर फादर, तो हम उस पर नहीं जाते कि किसी का कोई ट्रबल्ड पास्ट हो या उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी वालदा हैं, फैमिली है। ये सुपरविजन जो फैमिली को रखना होता है वो कहाँ था? जो ये सब कुछ हो रहा था वो कहाँ था? और ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, अक्सर व बेशतर ये चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब होती हैं कि सोशल मीडिया पर इतना कुछ उन जिंदगियों के बारे में पता चल रहा होता है, उन यूजर्स के बारे में पता चल रहा होता है जो सोशल मीडिया पर मौजूद होते हैं, कि वो न जाने आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए कहाँ तक जा चुके हैं। तो ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पर तो जो चीज़ एक बार पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई, किसी के हत्थे चढ़ गई, वो तार तार हो जाती है। इस केस में भी हुआ है। ये एक अदद गटर है और इस गटर में वंस समथिंग फॉल्स इनटू इट, तो फिर वो जाहिर है कि दागदार बहुत बुरे हाल में, और ये गटर बहुत बुरा है। बट एक लड़की इससे निकलना चाह रही है, उसको निकलने का मौका दिया जाए, और वो अगर एक करेक्शन की तरफ जा रही है तो उसको ख़त्म किया जाए। फैमिली इंस्टीट्यूशन फिर भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। शुरू से आखिर तक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड किसी शख्स को रखने वाला इंस्टीट्यूशन, यहाँ उसकी भी नाकामी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने अपना अपना नाकामी में हिस्सा डालते हुए इस मामले को इतना बड़ा कर दिया। अब अगर ये सेटल करने की कोशिश हो रही है तो इट शुड बी सेटल्ड, और फिर लोगों को प्रॉब्लम इस मामले में होना नहीं चाहिए। दिस शुड कम टू एन एंड। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती। आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली और मैं ही हूँ बड़ी अपने घर की। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं? मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी। हसन है वो मेरा यार।